A very good morning to all students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed cash book. Cash book is a book in which we record all the cash receipts and cash payment. As well as we discussed in the last few videos the types of the cash book. There are basically two types of the cash book: single column cash book and the double column cash book. Under single column cash book, we prepared one column of amount on each side of the cash book, one column of amount on the debit side and one column on the credit side of the cash book. So one column of the cash book is related only with the cash receipts and cash payments, whereas in the double column cash book we prepared a two column of amount on debit side and as well as in the credit side. The first column is related to the cash and second column is related to the bank. You know very well when the number of transaction in the business will be increasing. So in this situation, all the transaction could not be recorded in the journal. In this situation, firm divides its journal into the subdivide parts, and which is also known as subsidiary book. And there are basically six types of the subsidiary book: cash book, purchase book, sales book, purchase return, sales return, and journal proper. So in the last few videos we already discussed the cash book, the types of the cash book: single column cash book and double column cash book, as well as the other special types of the cash book, that is a petty cash book, which are maintained in support of the main cash book. Petty cash book record all these small payments in the business and which are totally prepared by the petty cashier and based on the impress system. Today we will move to the second type of subsidiary book, that is a purchase book, and it is also known as a purchase journal. What is purchase book? Let's we discuss it. The purchase book, all credit purchase of goods are recorded in the purchase journal, whereas a cash purchase are recorded in the cash book. यानी कि हम purchase book क्यों बनाते हैं? जितने भी क्रेडिट परचेज करते हैं हम गुड्स के, उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में. जबकि जो कैश परचेज होते हैं उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में. यानी कैश बुक में हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और रही बात क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, यानी अगर क्रेडिट परचेज हुआ तो उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिट सेल्स हुआ तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में. Okay, so other purchase such as purchase of office equipment, furniture, building are recorded in the journal proper if purchase on credit or in the cash book if purchase for cash. यानी अगर हम पूरी समरी उठाकर आपको कहें तो हम परचेज दो चीज़ों का करते हैं, एक गुड्स का और एक एसेट्स का. ओके, अगर हम एसेट्स को परचेस कर रहे हैं, एसेट्स को परचेस करें वो भी कैश में, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में. एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट में, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर में. वही बात करते हैं गुड्स की. इफ़ वी आर परचेजिंग अ गुड्स ऑन कैश सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द कैश बुक, बट इफ़ वी आर परचेजिंग अ गुड्स ऑन क्रेडिट सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक, दैट इज़ अ परचेज बुक. ओके, सो while we preparing the purchase book, one more point should be taken into your mind, is that credit purchase, all the credit purchase of goods are recorded in purchase book, and the following types of the purchase are not recorded in the purchase book, that is the number one, credit purchase of the goods, cash purchase of the assets and credit purchase of the assets. ओके, यानी एसेट्स को हम चाहे कैसे भी खरीदें, कैश में खरीदें, क्रेडिट में, उसको तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करना है. और गुड्स को अगर हम कैश में खरीद रहे हैं, कैश देकर खरीद रहे हैं, तो उसको भी हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है. हम सिर्फ वही परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे जो क्रेडिट में हम कर रहे होंगे, क्रेडिट में खरीदे होंगे. सो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द परचेज बुक? यू कैन ईजली सी दैट द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, द फर्स्ट कॉलम इज डेट, second column is invoice number, third column is the name of supplier, fourth column is the LF, and fifth column is amount. The monthly total of the purchase book posted to the debit of the purchase account in the ledger. Individual supplier account may be posted daily. Consider the following detail obtained from the Mrs. Kanika Traders and observe how the entries are recorded in the purchase journal. So let's we take one example.
how we will prepare the purchase book. Here it is an example. 2017 August 4, purchase from Messrs Nima Electronics, invoice number 3250, 20 mini size TV at the rate of 2000 per piece, 15 tape recorder at the rate of 12,500 per piece, trade discount on all items at the rate of 20%. यानी अगस्त 4 को हमने परचेस किया मेसर्स नीला इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज है. सो हमने क्या क्या खरीदा? 20 मिनी टीवी खरीदा, 2000 रुपये का एक था. 15 टेप रिकॉर्डर खरीदा, एक था 12,500 रुपये का, और जिस पे टोटल ट्रेड डिस्काउंट था 20%. अगस्त 10 को हमने परचेस किया मेसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 वीडियो कैसेट at the rate of 150 per piece and 20 tape recorder at the rate of 1650 per piece, trade discount on at the rate of 10% on purchase. On August 18, purchase from Messrs Northern Electronics 15 Northern Studios, that is 4,000 per piece, and 20 Northern Color TV, that is 14,500 per piece, trade discount 12.5%. August 6, purchase Messrs Nima Electronics 10 mini size TV 1,000 per piece and 5 color TV at the rate of 12,500 per piece, trade discount 20%. Brought from Messrs Pawan Electronics 20 video cassette at the rate of 150 per piece, 25 tape recorder at the rate of 1600 per piece, trade discount at the rate of 10% on purchase. So you can see that the books of Kanika Traders, the purchase book, you can see that कि क्वेश्चन इतना बड़ा है बट द सॉल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल. सो ये सॉल्यूशन कैसे आया, ये अमाउंट कैसे आई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑल द अबव 5 ट्रांजेक्शन यू कैन ईजली सी दैट द नेम ऑफ सप्लायर इज गिवन. वी परचेस्ड अ गुड्स ऑन August 4 फ्रॉम Messrs Nima Electronics, on August 10 Pawan Electronics, on August 18 Northern Electronics, August 26 Nima Electronics, and August 29 Messrs Pawan Electronics. रही बात अमाउंट कैसे आएगी, सो यू कैन सी डैट कि हमारे जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हमें डेट लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है, सप्लायर का नाम लिखना है और अमाउंट लिखना है. LF वैसे भी यू नो वेरी वेल कि LF की कॉलम की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती थ्योरेटिकल वे में, यानी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू में. जब आप प्रैक्टिकली प्रिपेयर करेंगे परचेस बुक तो LF कॉलम का भी यूज़ होता है. सो अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द परचेस बुक. फॉर्मेट बना लिया. देयर आफ्टर यू कैन राइट डाउन द डेट and you record all the transaction in chronological order. First you record the transaction of August 4, August 10, August 6, 18 and August 26 and August 29. And second column is name of supplier. So the first transaction related to the Nima Electronics. So we take the first supplier name is Messrs Nima Electronics. So we'll write down the name of Nima Electronics. Amount कैसे आएगा, so amount पे हम लोग डिस्कस करते हैं. So हमने परचेस किया था 20 मिनी टीवी और एक टीवी था 2,000 रुपये का. So total amount आया 40,000. Okay, we purchase 20 TV at the rate of 2,000. So total price of the TV, that is 40,000. 15 tape recorder for 12,500. So what is the value of the 15 multiplied by 12,500? That is so you can see that अगस्त 4 को हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से 20 मिनी टीवी खरीदी, मिनी साइज़ टीवी जो 2,000 रुपये की थी, और एक टीवी 20 टीवी खरीदी, सॉरी 20 TVs वी आर परचेजिंग at the rate of 2,000 per TV. So the total cost of the 20 TV, that is 40,000, as well as we purchased 15 tape recorder of 12,500. So the value is 1,87,500. So the total cost of the TV and tape recorder will be 2,27,500. यानी टोटल में हमने खरीदा 2,27,500 रुपये का. एंड यू नो वेरी वेल 2,27,500 का मैंने टोटल परचेस किया, उसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है
20% का. सो द बिल में 20% का अगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे दैट इज़ 45,500. सो द नेट परचेज वैल्यू फ्रॉम द नीमा इलेक्ट्रॉनिक दैट इज़ 1,82,000. So this value will be write down the amount column and with the invoice number 3250. Okay. So the second one is brought from Messrs Pawan Electronics. So you in this situation you can see we purchased the 10 video cassette at the rate of 150 per piece, that is 1500, as well as we purchased 20 tape recorder at the rate of 1650. So value is 33,000. So now the total value of the goods is 34,500 and you know very well 34,500 में से हमें डिस्काउंट मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 10% and the value is 3450 and now net amount of purchase is 31,050 rupees. So it will be write down the in पवन इलेक्ट्रॉनिक विथ इनवॉइस नंबर 8260. यानी पवन इलेक्ट्रॉनिक से हमने खरीदा सामान 31,050 रुपये का फ्रॉम द पवन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर. जितनी क्वांटिटी खरीदा उसके रेट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल अमाउंट आया, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हम लोगों ने माइनस कर दिया. ओके. सो नेक्स्ट वन इज़ August 18. For August 18 you purchase 15 Northern Studios and 15 खरीदा 4,000 रुपये के हिसाब से. So the value is 60,000 and you also purchased 20 Northern Color TV at 14,500. So the value is 2,90,000 and total value is 3,50,000. Okay, and total value of 3,50,000 हमें उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है 12.5% का. So after deducting the 12.5% trade discount, that is 43,750. Now we have a 3,06,250. The net amount purchased from the Northern Limited with the invoice number. So you can see कि हमें बहुत ही ईजी तरीके से अमाउंट को कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेट है उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर दो तरह की गुड्स हैं तो उसको दो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है रेट इंटू क्वांटिटी के बाद जो टोटल परचेज़ आता है उस परचेज़ में से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं और जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है. एंड उसी तरह से एज सेम एज वी रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द अगस्त 18, अगस्त 26 एंड अगस्त 29. सो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद वी फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ अ परचेज बुक दैट इज़ 6,12,000. सो वी परचेज goods on credit from the different supplier for 6,12,000. सो इस बुक से हमें ये क्लियर हो गया कि मैंने 6,12,000 रुपये का क्रेडिट गुड्स परचेज किया फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर इन विच वी परचेज द गुड्स फ्रॉम नीमा इलेक्ट्रॉनिक 1,82,000, पवन इलेक्ट्रॉनिक 31,050, नॉर्थन 3,06,250, नीमा इलेक्ट्रॉनिक 54,000 एंड पवन इलेक्ट्रॉनिक 38,700. Okay, so what is the main purpose of the preparing of purchase book? In purchase book we record all the credit transaction related to the purchase in this book with their invoice number and given a detailed description about the rate, quantity and the discount. Now we will move to the next type of subdivided journal, that is a purchase return book. After preparation of cash book and purchase book, now we will move to the purchase return book. What is a purchase return book? In this book purchase return of goods are recorded. यानी जब हम कोई गुड्स परचेस करते हैं और फिर उसको बाद में रिटर्न कर देते हैं तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक्स. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि कैश परचेस के रिटर्न को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्रेडिट परचेस के रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे. ओके जैसे मैंने कोई गुड्स सेल किया
सॉरी गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, इफ़ यू परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द परचेज बुक, और उस गुड्स को फिर मैंने रिटर्न कर दिया, सो सच काइंड ऑफ परचेज रिटर्न इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। अगर हमने कैश में परचेस किया और फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वहाँ पर परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, वहाँ पर कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें पैसा भी मिलेगा। सपोज़ अगर आपने किसी दुकान से सामान ख़रीदा कैश में, 100 रुपये दे के सामान ख़रीद लिया, और आफ्टर 2 to 3 आवर्स के बाद आप फिर दुकान पे गए क्या कि भैया जाइए मुझे ये सामान पसंद नहीं है, आप मुझे रिटर्न कर दीजिए, सो आपने पैसा लौटा दिया। सो इसमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ, एक बार पैसा गया परचेज़ के टाइम और परचेज़ रिटर्न के टाइम पैसा आ गया। सो ये कैश बुक को इफेक्ट करेगा, परचेज़ बुक को इफेक्ट नहीं करेगा। परचेज़ रिटर्न बुक में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन, वही परचेज़ रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हमने परचेस किया हो क्रेडिट पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। In this book, in the purchase return book, we record all the return of the purchase which are purchased on the credit. Sometimes goods purchased are returned to the supplier of various reasons, such as goods are not to be required quality or are too defective. For every return, a debit note is prepared and the original one is sent to the supplier for making necessary entries in the books. यानी अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमें एक इनवॉइस की तरह मिलता है, एक प्रूफ के लिए मिलता है, डेट इज़ अ डेबिट नोट। जैसे आपने परचेज में देखा होगा, व्हेन वी परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट, सो वहाँ पे इनवॉइस नंबर था। ओके, उसी तरह से जब परचेज रिटर्न होता है तो वहाँ पे होता है डेबिट नोट, वहाँ पे डेबिट नोट प्रिपेयर करके मिलता है। ये इस बात को सर्टिफाई करता है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने कितना गुड्स रिटर्न किया, उसकी वैल्यू क्या थी और किस डेट को रिटर्न किया, एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रिटर्न ऑफ द गुड्स। ओके, और जब आप सेल्स रिटर्न करते हो तो भी इनवॉइस ही जनरेट होता है, और जब आप सेल्स रिटर्न होता है तो वहाँ पे क्रेडिट नोट इशू होता है। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, सो you know very well what is purchase return book. Purchase return book is a book in which we record all the return of purchase which are previously purchased on credit. So format of purchase return book on your screen, that is in this format you can see that the debit date, debit note number, name of supplier, LF and amount. तो यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर की जगह चेंज देख रहे हो डेबिट नोट नंबर, बिकॉज जब आप परचेस करते हो तो इनवॉइस नंबर जनरेट होता है, और जब आप उसी परचेस को रिटर्न कर देते हो तो डेबिट नोट नंबर जनरेट होता है। एंड इसमें भी रिकॉर्डेशन सेम एज इट इज़ वैसे ही रिकॉर्ड होता है जैसे आपने परचेस के टाइम रिकॉर्ड किया, सेम एट इज वैसे ही रिकॉर्ड करना है यहाँ पे भी। सो व्हाट इज़ अ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, सो उसको हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं। अ डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ डेबिट टू बी रेज्ड अगेंस्ट अ पार्टी फॉर अ रीजन अदर देन सेल ऑन क्रेडिट ऑन फाइंडिंग दैट गुड्स सप्लाइड आर नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड। The defective goods are returned to the supplier of the goods and a note is prepared to the debit to the supplier. And when an additional sum is recoverable from a customer, such a note is prepared to debit the customer with an additional dues. In these two situations, the note is called a debit note. It means what is a debit note? जब किसी भी रीज़न से कोई भी पार्टी आपके गुड्स को रिटर्न कर देती है तो सिचुएशन में जो सप्लायर ऑफ द गुड्स होता है वो रिटर्न पार्टी को एक एक्स्ट्रा नोट इशू करता है जिस इज़ नोन एज डेबिट नोट, जो ये बताता है कि आपके ऊपर जो मेरा ड्यूज़ था, जो आपके ऊपर मेरी लाइबिलिटीज़ थी, आपको जो मुझे पैसा देना था वो अब नहीं देना है। द सेकेंड इज़ अ क्रेडिट नोट. Credit note is prepared when a party is to be given a credit for a reason other than credit purchase. It is a common practice to make it in renting. When goods are received back from a customer, a credit note should be sent to him. Suggested pro forma of credit note shown in the figure. Okay. यानी क्रेडिट नोट क्या होता है, ये तब सिचुएशन में इशू किया जाता है जब आपने कोई गुड्स सेल किया हो क्रेडिट पे और आफ्टर सम टाइम्स वो गुड्स रिटर्न आ जाए. ओके, सो द सेलर इशू टू द कस्टमर स्पेसिफिक नोट, दिस इज नोन एज क्रेडिट नोट. सो आपको बेसिकली ये जानना है कि डेबिट नोट कब प्रिपेयर होता है. डेबिट नोट इशूड बाय
supplier. First point, credit note prepared by the seller and debit note issued to the person who goods purchase on credit, यानी परचेस किया गया हो on credit, and after that the return, and seller कब इशू करता है, जब कोई सेल्स रिटर्न हो जाए. सो डेबिट नोट इशूज बाय द सप्लायर एंड क्रेडिट नोट इशूड बाय द सेलर, एंड डेबिट नोट issues in case of the purchase return and credit note issues at the time of sales return. So now we will take the one example related to the purchase return. Refers to the purchase book of Kanika Traders. You will notice that a 20 mini size TV and 15 tape recorder brought from Nima Electronics of A182,000. Now we are on the delivery, 2 minis and tape recorder were found defective and were returned to back by debit note of 3/2017. In this case the purchase return book will be as follows. जैसे अपने प्रीवियसली क्वेश्चन देखा था अभी, उसमें हमने कनिका ट्रेडर्स से टीवी खरीदा था, 20 मिनी टीवी और 15 टेप रिकॉर्डर खरीदा था. हम आपको उस क्वेश्चन पे द ट्रांजेक्शन इज दिस. आपने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से 20 मिनी साइज टीवी 2,000 रुपये में और 15 टेप रिकॉर्डर 12,500 रुपये में ख़रीदा था और ट्रेड डिस्काउंट हुआ था 20%. आप क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे तो इसी में से कुछ टीवी और इसी में से कुछ टेप रिकॉर्डर डिफेक्टिव पा लिया गया. सो आप उसको रिटर्न करते समय कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसी पे डिस्कशन किया जा रहा है. ओके, सो अभी आपने देखा परचेज बुक में हमने कनिका ट्रेडर्स से 20 मिनी साइज टीवी और 15 टेप रिकॉर्डर खरीदा था 1,82,000 रुपये में. उसमें से 2 मिनी टीवी और 1 टेप रिकॉर्डर हमने डिफेक्टिव पा लिया और उसको रिटर्न कर दिया. सो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर दी परचेज रिटर्न बुक फॉर्मेट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी डेट, thereafter we write down the debit note number, and thereafter we write down the supplier's name. The supplier name is नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, कनिका ने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो गुड्स परचेस किया था उसको वो रिटर्न कर दिया. एंड एट द लास्ट हम वी विल फाइंड आउट दी वैल्यू क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है. सो यू कैन सी दैट you can find that कि we purchase a 20 mini TV at the rate of 20,000 at the rate of 2,000, whereas we purchase 15 tape recorder at the rate of 12,500. so जब हम रिटर्न करेंगे तो रेट भी यही लगेगा. सो हमने रिटर्न कितना करना है भैया, हमें रिटर्न करना है 2 टीवी. तो एक टीवी का दाम है 2,000 रुपये. सो द कॉस्ट ऑफ 2 टीवी इज़ 4,000 एंड ऑल्सो रिटर्न दी 1 टेप रिकॉर्डर जिसमें से एक टेप रिकॉर्डर की वैल्यू थी 12,500. सो द कॉस्ट ऑफ टेप रिकॉर्डर इज़ 12,500. सो टोटल हमें कितने का गुड्स रिटर्न करना है, 16,500 रुपये का. बट जब आपने परचेज़ किया था तो आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था. जब आपने परचेज़ किया था गुड्स तो आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था. तो जब आप रिटर्न करोगे, रिटर्न की वैल्यू कितनी है, 16,500. सो उसमें भी आप 20% का क्या बियर करोगे, ट्रेड डिस्काउंट बियर करोगे. ये आएगा 3,300. So the net amount returned to the Nima Electronics, that is 13,200. So ये वैल्यू आपने 13,200 फाइंड आउट किया, it will be posted on the amount column. So it is a very basic concept कि when you purchase any goods and receive a trade discount, and when you return such goods you will also bear the trade discount. So जब आपने परचेज़ किया तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, जब आप रिटर्न करोगे तो फिर वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. लेकिन हाँ, ये भी बात आपको याद रखनी है कि हम जिस प्राइस पे गुड्स को परचेस करेंगे वो उसी प्राइस पे रिटर्न भी होगा. ये तो बेसिक रूल है एंड यू नो वेरी वेल. सो टुडे वी डिस्कस्ड द 2 इम्पॉर्टेंट बुक, that is a purchase book and purchase return book. What is purchase book? Purchase book, all those book in which we record all the credit purchase of the goods. In this book we does not include cash purchase of the goods or any kind of purchase of assets, whether it is purchase in cash or in credit.
Second one is a purchase return book. What is a purchase return book? When we return the goods purchase on credit, यानी जब हम कोई उधार पे सामान खरीदा हुआ वापस रिटर्न कर देते हैं, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द परचेज बुक? यू कैन नो दैट द फॉर्मेट ऑफ द परचेज बुक इज सेम एज द परचेज रिटर्न बुक, बट इन द परचेज बुक वी फाइंड दैट the date column, invoice number column, name of supplier, LF and amount. And in purchase return book we find that the date column, debit note number, name of supplier, LF and amount. And what is the purpose of debit note number and credit note number? So you know very well कि if we return the goods to the supplier, so in this situation supplier issue the debit note number to the purchaser, and when any customer return the goods due to the any reason, so in this situation we issue a credit note number. So debit note number issues in the case of purchase return and credit note number issued in the case of sales return. So at the end of today's video, now we will move to the next book, that is a sales book. The sales book, all credit sales of the merchandise are recorded in the sales journal. Cash sales are recorded in the cash book. The format of sales journal is similar to that of the purchase journal explained earlier. The source document for recording entries in the sales journal is a sales invoice or be issued by the firm to the customer. The date of sale, invoice number, name of customer and amount of the invoice are recorded in the sales journal. So अगर हम sales book के बारे में बात करें तो you know very well कि when we sell the goods on credit, यानी जब हम कोई सामान उधार पे बेचते हैं तो उसे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और उसी तरह से जब हम कैश में सेल करते हैं गुड्स को तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, या एसेट्स को सेल करते हैं चाहे वो कैश में सेल करें चाहे वो क्रेडिट में सेल करें, उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यानी बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स बुक इज़ सिमिलर टू द परचेज बुक, because in purchase book we record only the purchase of goods on credit, as well as in the sales book we record all the sales of goods on credit. And what is the format of the sales book? You know very well, the format of the sales book is same as the purchase book. In this, the column of date, invoice number, name of customer, LF and amount. So in this format you can see that the name of customer is shown in the sales book, but in the purchase book you can see that the name of supplier. यानी जब हम purchase book मेंटेन कर रहे थे तो वहाँ name of supplier का नाम लिखते थे, और जब हम sales book मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे हम customer का नाम लिखते हैं. ओके, सो आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने 3 बेसिकली बुक पे बात की है, जिसमें 2 बुक का हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट पे डिस्कस किया है, और सेल्स बुक का भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट आज टच नहीं कर रहे हैं. इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आज इस पूरे वीडियोस को पहले समराइज़ कर देते हैं ताकि इट विल हेल्पफुल फॉर यू सम मेन पॉइंट्स डेराइव फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक. सो लेट्स समराइज टुडेज़ वीडियो. सो टुडे आज हम लोगों ने डिस्कस किया द फर्स्ट वन इज़ अ परचेज बुक. ओके, सो परचेज बुक में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं पहले वो हम बता देते हैं. इन द परचेज बुक वी रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. इन सेल्स बुक वी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. ओके, तो परचेज बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एंड सेल्स बुक में वी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. इन द थर्ड बुक परचेज रिटर्न बुक. इन परचेज रिटर्न बुक वी रिकॉर्ड परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स विच परचेज ऑन क्रेडिट. मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी बिकॉज ऑफ ये पेन नहीं है, इट इज़ अ फिंगर, सो आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. द परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स विच परचेज ऑन क्रेडिट. यानी एक ऐसा परचेज रिटर्न हम गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं जिसे हमने ऑलरेडी परचेज किया था क्रेडिट पे. यानी पहले हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया,
फिर उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो 3। अब रही बात हम क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते। इन परचेज बुक हम क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करते। द फर्स्ट वन इज कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। ओके, ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हम गुड्स कैश में परचेस किए हैं या एसेट्स को कैश या क्रेडिट किसी में भी परचेस किए हैं तो उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। ऑन व्हेन वी परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट, सो उस केस में इनवॉइस नंबर इशू होता है। द नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ सेल्स बुक, इन केस ऑफ सेल्स बुक क्या क्या हम रिकॉर्ड नहीं करते। द फर्स्ट वन इज अ कैश सेल्स, सेकेंड वन इज अ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। यानी सेल्स बुक में हम लोग कैश रिकॉर्ड नहीं करते एंड कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स नहीं रिकॉर्ड करते। सॉरी, अगर हम एसेट्स को कैश में सेल करें या क्रेडिट में सेल करें उसको रिकॉर्ड नहीं करते। एंड व्हेन वी आर सेल, सो उस केस में भी इनवॉइस नंबर जनरेट होता है। और जिसको हम सेल करते हैं उसको कस्टमर कहते हैं और जिससे हम परचेस करते हैं उससे हम सप्लायर कहते हैं। यू नो वेरी वेल। द थर्ड वन इज अ परचेज बुक। इन केस ऑफ परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, डेबिट नोट विल बी इशू। एंड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, क्रेडिट नोट। सो द समराइजेशन पॉइंट जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के लास्ट में अभी हम लोगों ने जितने भी समरी पॉइंट डेवलप किए हैं, इट विल हेल्प्स टू पास दी जर्नल एंट्री, पास दी prepare the format of the purchase book, sales book and purchase return book. So today we'll complete the four important book of subsidiary, that is the cash book, purchase book, purchase return book and sales book. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot. If you have any kinds of doubt or suggestion, please ask me in the online classes as well in the video classes, WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot.